Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shahnila Yusuf and I will teach you principles of marketing. So, I will start with the basics of marketing from chapter number 1 from the basic definition of marketing. So, now coming towards the definition of marketing, that what is marketing? Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging value with others. It's a social process. Social, the word social is derived from the word society, means people are involved in it. Buyer and sellers are involved in it. Who is the buyer? Buyer is the person who wants to buy some product or service for what? To satisfy their needs and wants. And who is the seller? Seller is the person who wants to sell something in order to satisfy their needs and wants. And managerial process, like management process, planning, decision making, organizing, leading, controlling, etc., all these processes are involved in this process, in the marketing process, by which individuals and groups obtain what they need and want. What the wants, buyer wants the product or the service, and what seller wants their profit, their money, through creating and exchanging value with others. So they exchange process occurs. बायर जो है अपना प्रोडक्ट ले लेता है और इन रिटर्न वो सेलर को क्या दे देता है? उसका प्राइस. सो exchange is it's an exchange process between buyer and seller. Or, in other words, we can say that marketing is the process by which companies create value for customers. Companies customers को value देती हैं. What is value? Value is the benefit minus cost. एक प्रोडक्ट से हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है और उसके लिए हम कॉस्ट क्या पे कर रहे हैं, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग वैल्यू कहते हैं. Benefit can be of different types, like product benefit means what advantage we are getting from the प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पेन खरीदा है तो उससे आपको क्या एडवांटेज है कि आप उससे राइटिंग करेंगे. ठीक है, तो ये आपका उस प्रोडक्ट से बेनिफिट है. देन प्रोडक्ट बेनिफिट भी हो सकता है, देन प्रोडक्ट का इमेज बेनिफिट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक आईफोन है, नोकिया मोबाइल है, हुवावे मोबाइल है, हर प्रोडक्ट का अलग एक इमेज होता है. तो उस प्रोडक्ट से हम जो इमेज रिसीव करते हैं वो हमारा इमेज बेनिफिट हो जाता है. सो ये बेनिफिट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं. एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न. क्या है मार्केटिंग? मार्केटिंग इज द प्रोसेस जिसमें हम कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, उनको कोई बेनिफिट देते हैं हम लोग, और एंड वी बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप फॉर व्हाट? टू कैप्चर वैल्यू. हमारे लिए, बायर के लिए वैल्यू क्या है? वैल्यू जो उस प्रोडक्ट से हम लोग जो बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं वो हमारा वैल्यू है. और सेलर के लिए वैल्यू क्या है? उससे उसको जो इनकम मिल रही है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो उसकी वैल्यू है. सो इट्स एन एक्सचेंज प्रोसेस बिटवीन कस्टमर एंड द बायर, जिससे बायर को जो चीज़ चाहिए होती है वो बायर को मिल जाती है और सेलर को जो चीज़ चाहिए होती है वो सेलर को मिल जाती है. देन we sometimes mix selling, advertising, and marketing. We think that selling, advertising, and marketing, these are all the same things. So selling, what is selling? Selling means to sell the goods. जो गुड्स हमने बनाए हैं, जो गुड सर्विसेज हमने बनाए हैं, उनको हम सेल आउट कर दें, वो सेलिंग है. एडवर्टाइजिंग क्या है? जो प्रोडक्ट की प्रमोशन होती है, कम्युनिकेशन, हम लोगों को कम्युनिकेट करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट फीचर्स, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग. सो but marketing is a very broad, very large field. So selling and advertising are just a small part of marketing mix. What is marketing mix?
Marketing mix is the set of marketing tools that work together to satisfy consumer needs. What are marketing mix? The four P's: product, price, place, promotion. Product, what the features, the benefits that the product is offering to the customer. Price, what what is the price that we are offering to our customer. Place, at which place we are offering our product to the customer, means place should be convenient, should the product should be available to the customers. Promotion, how we communicate about the features of our product to the customer. Now there are three more P's are added to the four P's, like the packaging, positioning, and people. But the basic four P's are product, price, place, promotion. So along with these four P's, there are four C's. Product, product should be according to consumer needs. Price, price should be the cost to satisfy. Place, place should be convenient, means the product should be available to the customers. Promotion means communication, communication about the features of our product to the customers. So this was the basic definition of marketing, कि marketing होता क्या है. Now moving forward, marketing process, understanding the marketplace and customer needs and wants. So first of all, we have to understand the marketplace and customer needs, that what the customer wants. किस तरह हमें पता चलेगा? Through market research we will gather the data about customer needs and wants. Design a customer driven marketing strategy. Then the third step is construct a marketing program that delivers superior value. Build profitable relationship and create customer delight. Customers को satisfy करना है. Capture value from customers to create profit and customer quality. Customer को तो हमने satisfy किया, delight किया, लेकिन seller ने भी उससे वैल्यू कैप्चर करनी है, मीन्स अपना प्रॉफिट लेना है. दिस इज द मॉडल ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस. नाउ 5 स्टेप्स हैं ये मार्केटिंग प्रोसेस के, 1 2 3 4 5. नाउ वी विल स्टडी each of these steps in detail. In the first chapter is based on these 5 stages: 1 2 3 4 5. Now one by one we will study these steps. Now the number 1 step, understanding marketplace and customer needs. Now what is need? The state of felt deprivation, means our basic needs: need for food, need for clothing, need for warmth, belonging, affection, knowledge, etc. So these are our needs. Needs are not created by marketeer. ये marketeer create नहीं करता. मार्केटियर इसकी प्रमोशन नहीं करता कि भाई ये आप लोगों की नीड्स हैं. ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, चाहे कोई हमें बताए या ना बताए, ये हमारी बेसिक नीड है. हर एक इंसान की ये बेसिक नीड्स हैं. नाउ व्हाट आर वांट्स? द फॉर्म ह्यूमन नीड्स टेक as shaped by culture and individual personality. For example, our need is food. ठीक है, बेसिक नीड फूड है. वांट हमारी क्या है? मैकडोनल्ड बर्गर. भूख तो हमें लगी है, लेकिन हमने मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाना है. वाई? शेप्ड बाय कल्चर, शेप्ड बाय पर्सनालिटी, कि हमारी पर्सनालिटी किस तरह है, हमारा कल्चर किस तरह है, हमारा इन्वायरमेंट किस तरह है. तो अकॉर्डिंग टू दैट इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू दैट कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी, हमारी नीड्स जो हैं वो वांट्स बन जाती हैं. हमारी नीड्स जो हैं, बेसिक नीड्स जो हैं, वो हमारी वांट्स बन जाती हैं. क्लॉथिंग, वी नीड क्लॉथ्स बट जे डॉट क्लॉथ. वी नीड फूड बट सॉफ्ट ड्रिंक. सो ये हमारी जो नीड्स हैं वो कल्चर और हमारे इन्वायरमेंट को जब इफ़ेक्ट करती हैं तो वो हमारी वांट्स बन जाती हैं. नाउ व्हाट आर द डिमांड्स? वांट्स तो हमारी हैं कि भाई हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन क्या हमारी परचेजिंग पावर है, हमारे पास बाइंग पावर है? सो व्हेन ह्यूमन वांट्स बैक्ड बाय बाइंग पावर, जब हमारी वांट्स जो हैं, वांट्स हैं हमारी, लेकिन बाइंग पावर भी है हमारी, यानी कि हमारी जेब में पैसे भी हैं उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, तो वो हमारी डिमांड बन जाती है. ठीक है. सो दिस वाज नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स. नाउ मार्केटिंग ऑफर्स.
products, services, and experiences. So what is a marketing offer? Marketing offer is combination of products, services, information, experiences. हाँ, ये नहीं है कि मार्केटिंग ऑफर जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस है, टेंजिबल गुड्स और सर्विसेज है। नो, मार्केटिंग ऑफर कुछ भी हो सकता है। मार्केटिंग ऑफर कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है, टेंजिबल इनटेंजिबल कोई भी चीज़ हो सकता है। इन प्रोडक्ट लाइक पेन, बुक, शू, anything. Services, we go in bank and they provide us services. We go through an airline and in plane they provide us services. We go in hotel and they entertain us. Text preparation की services हम लोग avail करते हैं. Then marketing offer can be a person, like a lawyer, like a doctor, like when we need maids, we call to the agency, they provide us maids, like database admin, IT consultant. So marketing offers can be anything. Place हो सकती है, like कोई प्लॉट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं वापडा टाउन में, उसकी हमें प्रमोशन होती है कि ये यहाँ पे वापडा टाउन है, उसमें ये उसके फीचर्स हैं, लाइक डीएचए है। फिर नारायण कागान की हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं कि ट्रिप अरेंज हुआ है, साथ साथ उसकी वो लोग उस जगह की जो स्पेशल प्लेसेस हैं उनके बारे में प्रमोट करते हैं कि इसका, फिर साथ साथ हमें बताते हैं कि इसका इतने डेज का टूर होगा, इतना एक्सपेंस आएगा इस चीज़ पे, उसको प्रमोट करते हैं। So marketing offers can be anything. Now customer value and satisfaction. What is customer value? Customer value is benefits minus cost. जैसे कि मैंने पहले बताया, benefit हमारा क्या है? Benefit हमारा कुछ भी हो सकता है। Product benefit हो सकता है कि इस product से हमें क्या benefit है। Image benefit हो सकता है। Value is benefit minus cost. Cost हमारी क्या होगी? Cost हमारी प्राइस, जो प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए, उस प्रोडक्ट को अवेल करने के लिए, वो प्राइस हमारी कॉस्ट होगी। फिर सिर्फ मॉनेटरी कॉस्ट नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सी कॉस्ट हैं जो हम पे करते हैं। हमारा टाइम जो हम उस प्रोडक्ट को लेने के लिए स्पेंड करते हैं वो भी हमारी कॉस्ट है। जो एनर्जी हम वेस्ट करते हैं, जो हमारी साइकिक कॉस्ट है, इमोशंस, these all are included in cost. So value is benefit minus cost. What is the benefit that we are achieving and what is the cost that we have paid to avail this product? So उन दोनों का जो difference है, the difference between benefit and cost is our value. Exchange and relationships. The act of obtaining a desired object from someone by offering something in return. This is exchange. Buyer wants the product and seller wants the money. ठीक है, सेलर को मनी भी चाहिए, सेलर बायर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी चाहिए। सो दिस इज एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज प्रोसेस है, बायर जो है प्रोडक्ट ले लेता है और इन रिटर्न सेलर को मनी देता है, और क्या देता है, सेलर जो है उसके साथ रिलेशनशिप भी बिल्ड करना चाहता है। These are the elements of modern marketing system. Supplier supplies the raw material to the company. हमें भी raw material provide करता है, हमारे competitor को भी raw material provide करता है। Then we produce good and services. Our competitor also produce good and services, and through marketing intermediary, through distribution channel, those products or services reach to the end users. Now number 2, designing a customer driven marketing strategy.
Marketing management. What is marketing management? The art and science of choosing target markets and building profitable relationship with them. What is target market? Target market is what customers we will serve. हमने किन को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस किन को हमने प्रोवाइड करनी है. मार्केट को मार्केट बहुत बड़ी है, उसमें डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स हैं. फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी ले लें, मेल भी हैं फीमेल भी हैं. तो आपने किसको प्रोवाइड करनी है? मेल को, तो मेल आपका टारगेट मार्केट है. फीमेल को, तो फीमेल आपका टारगेट मार्केट है. देन एज ग्रुप, अगर एज ग्रुप डिफरेंट एज ग्रुप है, बेबीज हैं, देन यंगस्टर्स हैं, देन ओल्ड पीपल हैं, आपने किसको प्रोवाइड करनी है? फॉर एग्जांपल अगर गारमेंट्स हैं, किड्स गारमेंट्स आप बना रहे हैं, तो किड्स आपका टारगेट मार्केट है. देन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, कनाडा है, आप किस कंट्री के लिए बना रहे हैं? अगर आप पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं तो पाकिस्तान आपका टारगेट मार्केट है. अगर आप इंडिया के लिए बना रहे हैं तो इंडिया आपका टारगेट मार्केट है. टारगेट मार्केट हम लोग फर्दर चैप्टर में मार्केट सेगमेंटेशन में भी हम लोग टारगेट मार्केट को इन डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ हाउ कैन वी सर्व दोज कस्टमर्स बेस्ट? टारगेट मार्केट, वी हैव selected our target market, then how we can serve those customers best than our competitor? This is designing a customer driven marketing strategy. ऐसी स्ट्रेटजी हमने बनानी है कि हम अपने कॉम्पिटिटर से बेटर अपने कस्टमर्स को की रिक्वायरमेंट्स को, उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकें. डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी. और कस्टमर्स के साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप भी बिल्ड करें. The marketing manager's aim is not to only find and attract customers, but keeping those customers and growing, increasing day by day. हमने अपने number of customers को भी increase करना है. सिर्फ customers को attract नहीं करना कि हम अपनी product उनको sell कर दें. हमने उनको keep भी करना है और हम चाहते हैं कि वो हमारे पास हमेशा रहें, keep रहें हमारे पास and grow. And उनकी तादाद दिन ब दिन ज़्यादा भी करनी है हमने. This is marketing management. Selecting customers to serve. Market segmentation. Segmentation is dividing the total market into small segments of customer. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट बहुत बड़ी है, डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स हैं, उस सब को हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल एज 0 से लेके एज 2 तक, फिर एज 3 से लेके एज 7 तक. ये मैं ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप डिवाइड कर रही हूँ. आप डिफरेंट सेगमेंट्स हैं मार्केट में, आप किसी भी बेस पे उसको डिवाइड कर सकते हैं, मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं. देन 10 to 20 ईयर्स यंगस्टर्स को हमने, टीन एजर्स को ले लिया, फिर 20 से ऑनवर्ड्स 30 तक ले लिया, फिर उसके बाद हमने 30 से 40. सो मार्केट को हमने डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया. नाउ द टारगेट मार्केट आफ्टर सेगमेंटेशन, विच सेगमेंट द कंपनी विल गो. हमने किस सेगमेंट को टारगेट करना है. सो द सेगमेंट विच यू विल सिलेक्ट will be our target market, and target market is those that segment on which we have to target our attention, our total focus. वो हमारी target market है जिसको हमने अपनी product provide करनी है, जिसके लिए हमने अपनी product बनानी है, वो हमारा target market है. Marketing management is customer management. अच्छा, now moving forward, choosing a value proposition. It is a set of values or benefits that the company promises to deliver to customers to satisfy consumer needs. The benefits. Choosing a value proposition are the benefits that the company promises कि हमने ये अपने कस्टमर को देनी है, उसको कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिक्स फ़ोन की एग्जांपल ले लें. डिफरेंट फीचर्स हैं उनके कि जी भाई इसकी बैटरी जो है वो 5000 mAh है, बहुत ज़्यादा इसकी बैटरी चलती है और कम प्राइस में इसमें फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा हैं.
तो ये वैल्यू प्रोपोजिशन है, ये बेनिफिट्स हैं जिसका कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि ये हम अपने कस्टमर को देंगे। दिस इज वैल्यू प्रोपोजिशन। कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो आप वैल्यूज ऑफर करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, वो हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन है। Marketing management orientations. There are 5 concepts under which organizations design and carry out their marketing strategy: production concept, product concept, selling concept, marketing concept, and societal marketing concept. Now we will discuss one by one all these concepts. The production concept: consumers will buy those products which are available and highly affordable. This is an old concept, that consumer will buy only those products which आर अवेलेबल नियर बाय, कि हम बाज़ार जाते हैं, जो प्रोडक्ट हमें मार्केट में सामने नज़र आती है हम वो उठा लेते हैं, और ऐसी प्रोडक्ट उठाते हैं जिसकी प्राइस बहुत कम हो, चाहे उसकी क्वालिटी जैसी भी हो। वी डोंट केयर अबाउट दैट, वी आर नॉट concerned about quality, we are just concerned about its availability, and we are concerned about its price. Means we have to produce in bulk, in large quantity. Cost should be low and mass distribution should be available everywhere, कि जहाँ भी कस्टमर जाए उसको नज़र आए वो प्रोडक्ट और वो उसको उठा ले, प्राइस कम हो। दिस इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। देन आफ्टर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कस्टमर की नीड्स मैटर नहीं करती, कि कस्टमर की डिमांड्स क्या हैं, उसको प्रोडक्ट में क्या फीचर्स चाहिए, वो कुछ ऐड नहीं है, बस प्राइस कम होनी चाहिए और हर जगह पे अवेलेबल होना चाहिए। देन after production concept, it comes product concept. Consumer will favor products that offer the most in quality, performance, and innovative features. कंज्यूमर वो प्रोडक्ट परचेज करेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिसमें इनोवेटिव क्रिएटिव फीचर्स होंगे। फॉर एग्जांपल नोकिया था, पहले होता था, बहुत डिमांड थी उसकी, कि इसकी बैटरी बहुत अच्छी है, बहुत ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है इसकी, ठीक है। लेकिन उसमें फिर उसके बाद एंड्रॉयड आ गया, नोकिया ने अपनी प्रोडक्ट में इनोवेटिव फीचर्स, क्रिएटिवनेस नहीं लाई, तो नोकिया का अब नाम जो है वो मार्केट से बिल्कुल ऑलमोस्ट आउट हो गया है। अभी जिसके पास भी देखें, हुवावे के सेट्स हैं, आईफोन्स हैं, ओप्पो के, इन्फिनिक्स के सेट्स हैं, ये सेट्स हैं। तो आपने अपनी प्रोडक्ट में इनोवेटिवनेस, क्रिएटिवनेस साथ साथ लानी है, क्वालिटी उसकी इंक्रीज करनी है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। और अगर आप उस कंपटीशन को compete नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं लाएंगे, तो यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। बट द मेजर ड्रॉबैक इन द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वॉज दैट product will not be sold without attractive price, convenient distribution channels, and bringing it to attention of people who need. सिर्फ उसमें क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स नहीं होनी चाहिए, उसकी प्राइस भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए जो कस्टमर्स को अपील करे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और प्रमोशन भी उसका होना चाहिए। सो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के पास आया के बाद आया हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। What is selling concept? Consumer will not buy enough of the firm's product until it undertakes a large scale selling and promotion efforts. कस्टमर वो प्रोडक्ट बाय करेगा जिसकी लार्ज स्केल सेलिंग होगी और प्रमोशन एफर्ट्स भी होंगे। लाइक हमें नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोडक्ट की फीचर्स क्या हैं, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये किस में नॉर्मली प्रैक्टिस होता है? अनसॉल्ड गुड्स दैट बायर्स डू नॉट नॉर्मली थिंक ऑफ बाइंग, जो कि हमने नहीं सोचा होता कि ये प्रोडक्ट हमें लेनी है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज हमारी नीड नहीं होती, इंश्योरेंस कंपनी और मेनली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हम बाकी तो अपनी चीज़ों की इंश्योरेंस कर लेते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हमारी इतनी इंटेंशन नहीं होती कि लाइफ इंश्योरेंस भी हमने करनी है। तो इस चीज़ में सेलिंग कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक
लार्ज स्केल सेलिंग है और प्रमोशन। प्रमोशन इंश्योरेंस कंपनी में जो मेन जो थिंग है वो प्रमोशन है। जो प्रमोशन ये जो इंश्योरेंस कंपनी के जो मार्केटियर्स हैं उनका काम यही होता है कि क्लाइंट्स के पीछे फिरना, उनको इंफॉर्मेशन देना अपनी इंश्योरेंस के बारे में कि ये इंश्योरेंस है, इतने की है और इसके बेनिफिट्स ये हैं, आपको इतना मुनाफा मिलेगा, इसके बेनिफिट्स ये हैं। सो इट्स मेनली डिपेंडेंट अपॉन promotion efforts. This is selling concept. Then the marketing concept. Achieving organizational goals depend upon knowing the needs and want of target markets and delivering the desired satisfactions better than competitors do. उसके बाद आ गया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? आपने मार्केट को स्टडी करना है, मार्केट को एनालाइज करना है, मार्केट की नीड्स और वांट्स को आप लोगों ने स्टडी करना है। जो टारगेट मार्केट आपने सिलेक्ट की है, नाउ यू हैव टू स्टडी दैट टारगेट मार्केट, दैट व्हाट आर देयर नीड्स, व्हाट दे वांट, व्हाट फीचर्स दे वांट, व्हाट प्राइस they want, where we have to make availability of the products, where we have to deliver the products, and what will be the promotion media. All these to satisfy the customer needs is called the marketing concept. In, instead of make and sell philosophy, there is philosophy of respond, sense and respond. आपने sense करना है कि मार्केट की डिमांड क्या है, कस्टमर्स की डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाहते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने रिस्पॉन्ड करना है। दिस इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट उनका फैक्ट्री है, फैक्ट्री में उन्होंने गुड्स बना लिए, उनका फोकस क्या है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे उनका फोकस है कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये हमने फैक्ट्री में बनानी है और ये हमने कस्टमर्स को देनी है, चाहे वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, चाहे उनकी प्राइस कस्टमर को पसंद है, चाहे उनके फीचर्स कस्टमर को पसंद है। हमने कुछ भी नहीं देखना, हमने बस क्या करना है कि लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट्स बनानी है और हमने हर लोकेशन पे उसको अवेलेबल करना है ताकि वो कस्टमर्स खरीद लें। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? जो सेलिंग है कॉन्सेप्ट है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फैक्ट्री है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही मार्केट है। आपने मार्केट को स्टडी करना है, नीड्स वांट्स को आइडेंटिफाई करना है कि उनकी वांट्स नीड्स क्या हैं, डिमांड्स क्या हैं। कस्टमर नीड्स को आइडेंटिफाई किया, देन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के जो भी आपने प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन जो उनके फीचर्स हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, प्राइस क्या होनी चाहिए, प्लेसिंग कैसे करनी है, उसकी प्रमोशन हमने कैसे करनी है। देन इनका जो एंड पॉइंट था प्रॉफिट अचीव किया थ्रू थ्रू सेल्स वॉल्यूम। जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतनी ज़्यादा हमारे प्रॉफिट्स होंगे। प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इनका जो एम है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ही वो लॉयल कस्टमर होगा, एंड जो लॉयल कस्टमर होगा वो बार बार आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगा। देन सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। Societal marketing concept holds that marketing strategy should deliver value to customers in a way that maintains or improves both the consumers and the society's well-being. हमने सिर्फ कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं करना, हमने सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, हमने अपने इन्वायरमेंट के बारे में, अपने प्लानट के बारे में सोचना है, अपनी अर्थ जो हमारा प्लानट है इसके बारे में हमने सोचना है। सिर्फ सोसाइटी को हमने, सिर्फ कस्टमर को हमने सेटिस्फाई नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल बॉडी शॉप की एग्जांपल ले लें। हमारे जो बॉडी शॉप कंपनी है दैट यूज़ प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स इन देयर प्रोडक्ट्स, सो वर्क फॉर ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ द प्लानट।
It's a natural cosmetic, skincare, perfume company. This company uses plant based ingredients to make its products and overall protection of the planet. They have also their own charity, that is, the Body Shop Foundation for human rights, environmental, and animal protection. So, this company is following societal marketing concept, means they are fulfilling customer needs plus societal needs also, right? Three considerations underlying the societal marketing concept: consumers, we have to fulfill consumer satisfaction, we have to satisfy the consumers, we have to achieve our profits also, and we have to think about societies and human welfare also. This is societal marketing concept. कंज्यूमर की नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाएं, कंपनी की नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाएं, सोसाइटी की नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाएं. दिस इज सोसाइटल, द मोस्ट एडवांस्ड marketing concept.